this period of great distress, if we all are fine, that is something wonderful. We are fine and get connected from across India and then do our purposeful work. That is finishing the class. Ji. 1 minute, sir. And because we may be expecting exams sometime in June, so I hope all should be serious in attending the class, finishing the assignments and proceeding further. So, Dr. Babulal, shall I transfer the host to you? Sir, you are on schedule, you are very, very meticulous planner, Good afternoon, sir. Yeah, I try to do. I think within my responsibility. And I'm happy some of the very regular person like Sudeep Jaiswal, Jitendra Kesarwani, Rupesh. Welcome, Rupesh. And Sonakshi is here. I hope Sonakshi is getting us. Sir, I will transfer the host to you so that you can proceed. Is it okay? Hello, sir. Hello, how are you? Yeah, please transfer host to Dr. Babulal. डिस्कनेक्ट हो गए सर, जब डिस्कनेक्ट हो गया फिर से जुड़े। उनको फोन करना पड़ेगा लगता नहीं सर। मैं आ गया वापस, रिकॉर्डिंग कर रहा है सर। मैं होस्ट फिर से ट्रांसफर। सो काइंडली ट्रांसफर द कंट्रोल टू मी। यस, मेक मी होस्ट। I'm just doing it, sir. Just 1 minute. Dr. Babulal, host. Please, sir. Now it is transferred to you, sir. I think connection gets disturbed. नहीं हुआ है सर। नहीं हुआ सर अभी। I know नहीं हुआ, तो मेरे को भी दिख रहा। एक्चुअली आपका कनेक्शन आज काफी गड़बड़ चल रहा है, उसी की वजह से दिक्कत हो रही है। Sir, are you able to see my screen? Yes, sir. Wonderful. Just screen is loading. Yeah, आ गया सर। ठीक है ना सर। सो टुडे, पिछली बार जब हम लोगों ने आइस ब्रेकिंग की बात की थी, तो वो किसी भी सेशन के लिए इट इज ऑलवेज यू नो दैट इज ए गुड स्टार्टिंग पॉइंट। तो आइस ब्रेकिंग में हम लोगों ने बेसिकली जो आइस ब्रेकिंग का कंसेप्ट क्या होता है कि मेकिंग थिंग्स फ्री फ्लोइंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। आपका प्रेजेंटर से टारगेट ऑडियंस के बीच में इफ द कम्युनिकेशन इज नॉट ब्लॉक्ड, सो दिस इज डन थ्रू प्रॉपर आइस ब्रेकिंग टूल्स। तो ये जितने भी टूल्स हैं, ये सारे के सारे क्या है कि हमारी कम्युनिकेशन को इंप्रूव करने के लिए। और कम्युनिकेशन का मतलब यह है कि टू पास द नॉलेज और द कंटेंट और द आइडिया। क्योंकि ये टूल्स अपने आप में इनका कोई मीनिंग नहीं है, बट ये टूल नहीं होंगे तो द एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ पासिंग द इंफॉर्मेशन और पासिंग द नॉलेज, क्योंकि इंफॉर्मेशन का हायर सिंथेसिस थिंग इज नॉलेज। The whole purpose is how do we pass the knowledge from presenter to the receiver.
पूरा ऑब्जेक्टिव यही है। और हमारे इस पूरे अभियान में आइडिया इज कि इट शुड बी फुल्ली अलाइन टू द ओवरऑल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो आज के सेशन में वी आर पर्टिकुलरली फोकसिंग ऑन मेकिंग ऑडियो विजुअल एड्स, राइट। तो ऑडियो विजुअल एड्स की जब बात करते हो, this portion, this particular slide, you will always find ki everything is fully aligned to the organizational goals, TNA, communication with the business results. Finally, see, making ice breaking for free flowing of the information and improving the engagement levels. And then audio visual aids for improving communication effectiveness. So these tools are basically required to improve the effectiveness of the communication or the transfer of the knowledge. So in this session, we will learn about AV aids for improving effectiveness of presentation and outcome of trainings. The purpose is how to improve the outcome of the training. So these tools are very, very essential and very, very important. And in any communication framework, there is a source, there is a receiver, there are certain interferences, feedback, and the environment. So all these have to be continuously kept in mind while choosing the audio visual aids also. अब एक बहुत बड़ा, आप सभी ने, since you all are seasoned trainers, you know, it is always said, you know, picture is worth thousands of words, right? आप लोग कितने लोग सहमत हैं इस सेंटेंस से? बिल्कुल सर। अब एक छोटा सा ग्राफिक्स हमने किसी पेपर से लिया, एंड यू सी कि देयर इज ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोविड सिचुएशन इन द कंट्री। तो इस पिक्चर में आपको देखोगे कि इसको यदि हमने नैरेटिव की फॉर्म में लिखेंगे तो इट विल टेक ऑलमोस्ट 1 पेज, कि अप्रैल के महीने से स्टार्ट हुआ, जुलाई में ये पोजीशन थी, अक्टूबर में ये हुआ, एंड देन स्टार्टेड फॉलिंग डाउन एंड इट टेपर्ड ऑफ ऑलमोस्ट टू practically nil at January, and then there was a euphoria that yes, we have won the war, COVID war, and then in April it just more cases started happening, and then it peaked to this. तो ये पूरा narrative आपको एक glimpse में नजर आ गया। तो that is the power of using these audio visual tools, कि एक छोटे सी क्लिप में पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन छुपी रहती है। तो ये हम लोग खुद फील कर सकते हैं इस छोटे से चार्ट को देख करके। सो मेकिंग यूज ऑफ these tools is very, very important and essential to pass the communication, desired communication. ये बहुत ध्यान में रखना है कि किस चीज को हमें एम्फेसाइज करना है और उसी चीज को दिखाना है। ज्यादातर केसेज में क्या होता है कि जस्ट टू मेक थिंग्स मोर इंटरेस्टिंग, उसमें एनिमेशन इतना भर देते हैं, उसके अंदर सो मनी कलर, सो मनी टाइप ऑफ फॉन्ट्स, कि उससे जो मेन ऑब्जेक्टिव आपका नीचे चला जाता है, एंड लोड ऑफ ग्लोस, लोड ऑफ you know distractions start happening. तो one has to be very, very careful. और आज के टाइम में when the things are changing continuously, you know, organizations को survive करने के लिए learning continuous basis के ऊपर होनी है, और this learning can be enabled by making use of cost effective tools and technologies. क्योंकि organizations में आप देखेंगे कि staff is spread all across geographies, जिसमें आप देखोगे लोकली भी होंगे, अपने इंडिया में भी होंगे, एंड देयर में भी स्टाफ जो पूरे इंडिया के बाहर भी होंगे, राइट। तो ये लर्निंग को इसेंशियल करना है और कंपनी वाइड लर्निंग आपको इम्बाइब करनी है, तो उसके लिए दिस टूल्स आर वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। और अब आप देखोगे कि आदमी इस पोजीशन पे जो पहुंचा है, ये सी द ह्यूमन इज टुडे द मोस्ट पावरफुल species on the earth. So how he has reached to this position?
रुपेश राय साहब बताइए कि आदमी इतनी डोमिनेंट पोजीशन पे क्यों पहुंचा? योर ऑब्जर्वेशंस और योर आइडियाज टू अस. Sir, it is due to his intellectual capacity, we can say, क्योंकि human being. बहुत बढ़िया. कि जो सबसे बड़ी चीज है कि आदमी टूल्स का इन्वेंशन कर लेता है और टूल्स को अप्लाई करता है. तो द कैपेबिलिटी ऑफ द ह्यूमन बीइंग टू इन्वेंट टूल्स and make use of those tools, Yes. that differentiates the human species to the rest of the animal world. Yes. अब यहाँ पे आप देखोगे कि कुछ हद तक छोटे लेवल पे गोरिल्ला वगैरह जो हमारे एक तरह से बहुत नियरेस्ट स्पेसीमैन हैं, जो जिसमें कुछ कैपेबिलिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स है. बट ह्यूमन बीइंग ने आप देखोगे कि कहाँ से he started making use of fire, then woods, and then gradually, he reached to the position where he has got enormous power of flying, that is travel उसके हाथ में आ गया, communication उसके हाथ में आ गया, so many invention has happened. ये सारा का सारा खेल कैसे हुआ कि he was very good at making tools not only for reproducing physical objects but even for ट्रांसफरिंग द इंटेलेक्चुअल कैपिटल. जो आपने बहुत ही अच्छे शब्दों में कहा कि इंटेलेक्चुअल कैपिटल को भी ट्रांसफर करने के लिए बहुत सारे टूल्स हुए, और उसमें सबसे बड़ा टूल्स था कि ही लर्न टू राइट, ही लर्न स्पीकिंग और राइटिंग के उसने बहुत सारी चीजें इजाद कर ली. एंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम थिंग्स स्टार्टेड गेटिंग डॉक्यूमेंटेड. तो वन ऑफ द टूल जो सबसे पहले उसके हाथ में आया कि जो पेड़ों की छाल के ऊपर वो अपने चीजों को लिखना शुरू किया. एंड दिस वाज वेरी वेरी इफेक्टिव इन पासिंग द नॉलेज फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, फ्रॉम वन ग्रुप टू अनदर ग्रुप. तो ये सबसे बड़ी चीज है कि ये एक छोटा सा कंपोनेंट जो इजाद हुआ, और ये सारे के सारे क्या है कि आपका एवी टूल्स के तहत ही आता है. राइटिंग इज अगेन पार्ट ऑफ द एवी टूल्स, कि उसको आपने डॉक्यूमेंट करके पेपर पे लिख दिया और उस बार्क छाल को आपने कहीं पे कॉमन प्लेस पे लगा दिया, तो एवरीबॉडी कैन सी द इंस्ट्रक्शंस, एवरीबॉडी कैन गेट टू नो, द ग्रुप कैन गेट टू नो कि भाई हमारे लिए क्या मैसेज कम्युनिकेट हो रहा है, राइट. तो सबसे बड़ी जो चीज है कि ये ह्यूमन बीइंग की कैपेबिलिटी टू इन्वेंट कंटिन्यूस बेसिस पे न्यू टूल्स और उन टूल्स को फिर अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करना. सो दैट डिफरेंशिएट्स ह्यूमन बीइंग्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द स्पीसीज. अब आप ये देखोगे कि एक बहुत बढ़िया बुक इसकी प्रोफेसर रामचरण की आई थी, जिसमें ही द टाइटल ऑफ द बुक इज अटेकर्स एडवांटेज. एंड हियर इन दिस एक वर्ड उन्होंने कॉइन किया है, परसेप्चुअल एक्विटी. तो परसेप्चुअल एक्विटी इज द साइकोलॉजिकल एंड मेंटल प्रिपेयर्डनेस टू सी अराउंड द कॉर्नर्स एंड स्पॉट पोटेंशियल सिग्निफिकेंट anomalies, contradiction and oddities in the landscape before others can do it. तो ह्यूमन बीइंग की परसेप्चुअल एक्विटी कैसी बढ़ाई जाए, और ये कैसे बढ़ेगी? व्हेन ही कैन सिंथेसाइज इंफॉर्मेशन फ्रॉम डाइवर्स चैनल्स, डाइवर्स सोर्सेज, तब जाके आदमी की परसेप्चुअल एक्विटी बढ़ेगी. एंड देन ही विल बी इन ए पोजीशन टू परसीव थिंग्स बिफोर अदर्स कुड सी, और उसी के ऊपर वो एक्ट करेगा. तो ये सारी की सारी चीजें कैसे पॉसिबल है? जब वो इन बहुत सारे टूल्स का इस्तेमाल करता है, कंटिन्यूस लर्निंग करता है, कंटिन्यूस बेसिस पे ही कीप्स ऑन असिमुलेटिंग नॉलेज फ्रॉम डाइवर्स सोर्सेज. दूसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोटेशन है संजू, जिसने आर्ट ऑफ वार एक नाम की एक किताब लिखी थी. उसमें लिखा है कि इफ यू नो द एनिमी एंड know yourself, you did not fear the result of 100 battles. तो power of knowing is very very. तो पूरे इस सेशन के अंदर जो सबसे बड़ी चीज निकल के आ रही है कि लर्निंग एंड डेवलपमेंट इज गोइंग टू बी द कोर फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन.
यस सर। तो जितेंद्र ये जी जो माइक ऑन है। हेलो सर जितेंद्र जी का माइक ऑन है, उसको म्यूट कर दीजिए। हाँ जितेंद्र जी थोड़ा माइक को म्यूट कर दीजिए प्लीज। राइट। तो आज की डेट में आपको राइट इंफॉर्मेशन को असिमुलेट करके you know your strengths, your capabilities, your tools and techniques, and at the same time if you know about your competitors, इससे बड़ी कोई चीज हो नहीं सकती, and this will definitely your victory. I think one of the mic is on. Jitendra ji, are you able to listen me, sir? Jitendra Kumar sir. I have muted him, right? हाँ जी रूपेश राय जी, are you able to listen me? Yes, sir. Yes, sir. Wonderful. तो कुल मिला के क्या है कि knowing about yourself, knowing about your enemy is very very important. तो पूरा फोकस क्या है? नॉलेज एसिमुलेशन के ऊपर। ह्यूमन बीइंग की प्रोग्रेस कंटिन्यूस बेसिस पे नॉलेज एसिमुलेशन है और नॉलेज ट्रांसफर है। आप अपनी ऑर्गेनाइजेशनल का नॉलेज कैपेबिलिटी बढ़ाएंगे तो आपकी ऑर्गेनाइजेशनल की कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इंप्रूव होगी। और उन सब के लिए आप कंपनी ट्रेनिंग के लिए पैसा भी खर्च कर रही है, राइट कैंडिडेट भी लेके आ गई, बट यदि आपने ट्रेनिंग को प्रॉपर ढंग से प्रिपेयर नहीं किया, जो रिक्वायर्ड टूल्स एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया, जैसे वार के टाइम में जो मिलिट्री है या डिफेंस फोर्सेज हैं, दे मेक यूज ऑफ मैनी टूल्स एंड एड्स, और उनके बिना आपका कितना जबरदस्त हौसला हो, जितना ही डिसिप्लिन फोर्स हो, दोज आर डेफिनेटली रिक्वायर्ड। बट यदि प्रॉपर टूल्स आपके पास नहीं होंगे, प्रॉपर एड्स नहीं होगी, तो उसकी इफेक्टिवनेस नहीं आएगी। तो सेम इज ट्रू कि आपका कंटेंट बहुत बेहतरीन हो सकता है, आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे हो सकते हैं, बट यदि वो कंसेप्ट और आपका कंटेंट टारगेट ऑडियंस के पास नहीं पहुंचा, तो इट इज ऑफ नो यूज, यू नो। कई बार क्या होता है कि आपका स्क्रीन अच्छे से दिख रहा है बट वॉइस नहीं पहुंच पा रही है, अगेन ही इज नॉट एबल टू ग्रास्प कि यार जो फैसिलिटेटर बोल क्या रहा है। कई बार जो टारगेट ऑडियंस है वो आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहा है, ही हैज गॉट अ क्वेश्चन टू शेयर, बट उसके माइक में कोई इश्यू है। तो राइट क्वालिटी ऑफ माइक, राइट क्वालिटी ऑफ प्रेजेंटेशन मटेरियल, ये सारे बहुत ही जरूरी हैं आज के टाइम में। अब दूसरा जो है कि एक छोटी सी पिक्चर के थ्रू आप दिखा सकते हो कि भाई किस एंगल पे आपको हिट करना है। तो कोई भी एक्शन लेने के लिए आपको ये सारी चीजें यदि आप वर्बल फॉर्म में बताते तो इट वुड हैव बीन वेरी वेरी डिफिकल्ट। अब आपने देखा होगा वुड लॉक्स को छोटे छोटे टुकड़े बनाने के लिए किस डायरेक्शन में हिट करना चाहिए, इस पूरी पिक्चर से बहुत ही अच्छे से ये क्लियर है। तो नोइंग का बहुत ही बड़ा रोल है और उसमें ऑडियो विजुअल टूल्स का अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आपने देखा ही होगा कि कई बार जैसे वार लाइक सिचुएशन है, अब आप उसमें रिटर्न कम्युनिकेशन भी नहीं कर सकते, युद्ध हो रहा है उसमें जाके मेमो थोड़ी भेजोगे किसी को, वॉइस आप बोलोगे तो सुनाई नहीं देगा। तो इस केस में आपने देखो भगवान कृष्ण ने क्या किया, उसने एक स्पेशल एड का इजाद किया, और वो स्पेशल एड क्या था कि उसने एक दातुन का टुकड़ा लिया, ट्विग ऑफ ए ट्री, और उसको उसने भीम को दिखाते हुए ही टोर इट इन 2 पीसेस, और इस तरह से फेंका कि दोनों पीसेस एक दूसरे से अपार्ट पड़े। तो यदि ये ऐड उसके पास नहीं होता तो कृष्ण जी का ज्ञान भी था, भीम की ताकत भी थी, बट सिंस ये जो कृष्ण जी का ज्ञान है ये भीम के पास नहीं पहुंचता फॉर एक्शन, तो ये पूरा एफर्ट बेकार हो जाता। तो कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर आपको नए नए एड्स इस्तेमाल करने हैं, एंड एज द टेक्नोलॉजी इज प्रोग्रेसिंग, ये नए नए एड्स हमारे एज ए ट्रेनर्स अवेलेबल होते जा रहे हैं। तो दिस इज ए वेरी वेरी पावरफुल मैसेज कि यहाँ पे आपको
अपना सिर्फ द पर्पज इज पासिंग द मैसेज और द इंफॉर्मेशन और द नॉलेज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। और उसके लिए क्या टूल होगा? अब यहाँ पे बोलने से वो उसके पास आवाज पहुंचती ही नहीं, रिटर्न कुछ राइट करके भी लिखता तो एक दूसरा है कि सबको पता चलता, और दूसरा दिखता भी नहीं इतनी दूर से। तो ही एक सिंबॉलिक उसने मैसेज ट्रांसफर किया, एंड दैट वाज वेरी वेरी पावरफुल। तो मेनी टाइम्स दीज एड्स कैन बिकम वेरी वेरी पावरफुल। यहाँ पे भी इस पूरे केस में आप देखो कि बहुत सारे अच्छे अच्छे एग्जांपल्स हैं कि कैसे आपके एड्स मदद कर सकते हैं आपके कम्युनिकेशन को इंप्रूव करने के लिए, आपके इंफॉर्मेशन डिलीवरी को, नॉलेज डिलीवरी को करने के लिए। तो यहाँ पे कृष्ण जी उनको एक मैसेज देते हैं भीम को कि भैया यू हिट एट द बॉटम पोर्शन, यानी कि उसकी थाई के ऊपर हिट करो, बिकॉज दैट इज द वीकेस्ट एरिया ऑफ दुर्योधन। तो यहाँ पे भी अगेन ही हैज नॉट यूज्ड साउंड or audio, he has not used the conventional writing, he used a symbolic message of passing the information। तो यहाँ पे भी उसने एक टूल का इस्तेमाल किया, एड का इस्तेमाल किया, एंड विद द रिजल्ट हिज कम्युनिकेशन बिकेम वेरी वेरी इफेक्टिव। तो अब सबसे बड़ी चीज है, आपने देखा होगा कि जो सेंस ऑर्गन्स हैं ये सारे के सारे हमारी इंफॉर्मेशन को असिमुलेट करते हैं। इन्हीं ऑर्गन्स के थ्रू फैसिलिटेटर इंफॉर्मेशन को पास ऑन करता है, और इसी ऑर्गन्स के थ्रू जो ट्रेनी है या जो पार्टिसिपेंट है या स्टूडेंट है, लर्नर है, वो असिमुलेट करता है। और अंग्रेजी में इस वर्ड को बोलते हैं सेंस ऑर्गन्स, बट हमारे हिंदी वर्ड में इनको क्या बोलते हैं? ज्ञानेंद्रियां। ये इंद्रियां जिसके तहत हम अपने ज्ञान का अर्जन करते हैं, तो ये सारी की सारी क्या कहलाती हैं? ज्ञानेंद्रियां। तो मोस्ट कॉमन जो यूज होता है वो बोलते हैं 5 ज्ञानेंद्रियां होते हैं। तो 5 ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी होती हैं? सर जायसवाल थोड़ा सा आप बताइए, इनका क्या महत्ता है? सर एक तो आंख, कान, नाक, मुंह, और जो हमारे स्किन है, टच, टेक्टोनिक जिसको बोलते हैं, टेक्टाइल। टेक्टाइल। तो देखो ऐसा है कि ये 5 जो ऑर्गन्स है ये जाके आपके ज्ञान को असिमुलेट करते हैं। और हम क्या बात कर रहे हैं अभी? ओनली ऑडियो एंड वीडियो की। तो ऑडियो वीडियो इज ओनली ए सबसेट। इनफैक्ट जो जितने एडवांस कॉम्प्लेक्स फिनोमिना होते हैं उसमें आप देखोगे कि इन सब का इस्तेमाल होता है ट्रेनिंग्स के अंदर। जी। जैसे कई बार कॉम्प्लेक्स मॉडल्स बना देते हैं, उन मॉडल्स को डिसअसेंबल कर दिया आपने स्टूडेंट्स को या पार्टिसिपेंट्स के थ्रू बनवाया, तो उसमें क्या है? आपके सेंसरी सिस्टम्स काफी जो टच वाले हो गए आपके, और कई बार इवन उन मॉडल्स में स्मेल वगैरह भी आया। जैसे केमिस्ट्री के जितने भी एग्जांपल्स होते हैं, आप देखो प्रैक्टिकल करके बच्चों को दिखाते हैं। हाँ। तो इवन आपका टेस्ट का इस्तेमाल होता है, हियरिंग का तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम करते ही हैं, और स्मेल का भी इस्तेमाल होता है। और इनका कईयों का इतना डीप रूटेड इम्पैक्ट होता है कि आई कैन विविडली रिमेम्बर, जब मैं 11वीं क्लास में पढ़ता था तो वी वर डूइंग एन एक्सपेरिमेंट ऑफ हाउ टू मेक क्लोरीन। अब हमारे साथ एक बच्चा था, उसने क्लोरीन बनाने के बाद जो परख नली बोलती है जिसको टेस्ट ट्यूब बोलते हैं, उसमें वो केमिकल डाला और मेरे नाक के सामने सीधे लेके आ गया। एंड यू वॉन्ट बिलीव, सी द इम्पैक्ट इतना डीप है कि आज 50 साल के बाद भी, 50 से ज्यादा ही हो गया होगा रादर, तो उसके बावजूद भी मेरे को उस क्लोरीन का कलर भी दिख रहा है कि येलोइश ग्रीन कलर का था, और उसका स्मेल वाज सो पंजेंट, यू नो, कि टुडे आई कैन फील दैट इज द स्टिमुलस जो आपकी बॉडी में कई बार आप उसको जिंदगी भर नहीं भूलते। तो इन सारे के सारे सेंस ऑर्गन्स को, तो एज ए ट्रेनर्स, यू नो, वी मस्ट ensure that we make use of all these faculties in making our training more effective, more engaging and more result oriented। ट्रेनिंग का पर्पस रिजल्ट ओरिएंटेशन होना चाहिए। और पूरी पिक्चर क्या है कि जब हम सारी चीजों को एक साथ
जो सिग्नल्स आते हैं, देन वी गेट ए कंप्लीट पिक्चर। तो नॉट ओनली आपका ऑडियो एंड वीडियो बट अदर सेंस ऑर्गन्स का भी इस्तेमाल होना चाहिए। और आजकल बहुत सारी जगह आप देखोगे कि सिमुलेटर्स का बहुत सारा इस्तेमाल हो रहा है कि किसी को हाई स्पीड ट्रेन सिखाने से पहले, ड्राइवर सीट पे बिठाने से पहले क्या है कि कंप्यूटर एनिमेटेड सिस्टम्स होते हैं जिसमें पूरी की पूरी फीलिंग आए कि एज इफ यू आप पूरी की पूरी गाड़ी चला रहे हैं। जैसे बच्चे वीडियो गेम्स नहीं खेलते, दे आर सो एंगेजिंग और पूरी की पूरी वो ड्राइविंग काफी हद तक सीख जाते हैं और फाइनल टचेज वो प्रैक्टिकल ऑन फील्ड ट्रेनिंग लेके करते हैं। तो दैट इज द पावर ऑफ मनी ऑफ दिस। इसके अलावा सेंस ऑर्गन्स, ये 5 तो हमारे कन्वेंशनल लैंग्वेज में यूज होते हैं, भाई 5 सेंस ऑर्गन है। बट इसके बाद देर आर 2 मोर सेंस ऑर्गन्स। तो ये जो है आपका 6वां और 7वां है। ये एक होता है प्रोप्रियोसेप्शन, यानी कि बॉडी की अवेयरनेस। ये जो 6 सेंस है, इससे पता चलता है कि आपका बॉडी विद रेस्पेक्ट टू अदर्स कहाँ पे है। जैसे खाना खाते हैं तो हाथ और मुंह का कोऑर्डिनेशन ऑटोमेटिकली हो रहा है, क्योंकि बॉडी के अंदर ऐसी अवेयरनेस है कि हमारा हाथ हमसे कितनी दूर है या हम किसी ऑब्जेक्ट से कितनी दूर है। तो दिस इज अनदर सेंसिंग कैपेबिलिटी ऑफ ह्यूमन बॉडी। उसके बाद 7वां जो आपका सेंस ऑर्गन्स है वो है वेस्टिबुलर या बैलेंस अवेयरनेस। तो बैलेंसिंग का आपने देखा होगा कि इसमें जो हमारा ईयर होता है उसमें कोक्लिया होता है, तो पूरा का पूरा वो आपके बॉडी को बैलेंसिंग पोजीशन आपकी बताता है। तो यदि ये 7 सेंसर्स का यदि हम अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं तो वी कैन डेवलप ए वंडरफुल ट्रेनिंग एड फॉर वेरी कॉम्प्लेक्स फिनोमेना। कि कॉम्प्लेक्स फिनोमेना जहां पे इस तरह की चीजों की जरूरत होती है। आप देखोगे कि यदि कहीं ज्योग्राफी पढ़ाना है तो वो बिना मैप्स के इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू टीच ज्योग्राफी। आपको बायोलॉजी पढ़ाना है तो अगेन लॉट ऑफ विजुअल्स, लॉट ऑफ विजुअल्स, लॉट ऑफ मॉडल्स, इवन वर्किंग मॉडल्स ये पूरे दिखाए जाते हैं। एनाटॉमी की क्लास है तो ये सारी की सारी चीजें आपको इस्तेमाल करनी है। हमारे जो बिहेवियरल ट्रेनिंग्स होती हैं उसमें ग्रुप एक्टिविटीज का बहुत बड़ा रोल रहता है। ग्रुप को रोल प्लेइंग के काफी सारे एक्टिविटी प्ले करते हैं। तो हर सिचुएशन में क्या टूल इस्तेमाल होगा, ऐसा नहीं कि एक टूल एक सिचुएशन में इफेक्टिव है तो वो हर जगह इफेक्टिव होगा। दैट इज नॉट द केस। अब ऑडियो विजुअल एड्स का जो डेफिनेशन हमने निकाली, ये मरियम वेबस्टर डिक्शनरी है, काफी फेमस डिक्शनरी है। तो डिजाइन टू एड इन लर्निंग और टीचिंग बाय मेकिंग यूज ऑफ बोथ हियरिंग एंड सीइंग। ऐसे टूल्स जिसमें हम हियरिंग का भी और सीइंग के दोनों का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे टूल्स को, ऐसे इस जो गैजेट्स का इस्तेमाल यदि हम करके और लर्निंग को मोर इंप्रूव कर सकते हैं। सो दिस रिलेट्स टू बोथ हियरिंग एंड साइट। तो एक वेबस्ट्री डिक्शनरी के अंदर दूसरी एक डेफिनेशन हमने ढूंढी कहीं से। तो दिस इज ट्रेनिंग और एजुकेशनल मटेरियल्स डायरेक्टेड एट बोथ द सेंसेस ऑफ हियरिंग एंड द सेंस ऑफ साइट। फिल्म, रिकॉर्डिंग, फोटोग्राफ्स used in classroom instructions, library collection or similar situations. So audio visual aids play a vital role in making comprehension of topic being taught in classroom. तो सबसे बड़ा इसका रोल क्या रहता है कि क्लास के अंदर जो टॉपिक पढ़ा रहे हो उसको कैसे कॉम्प्रिहेंसिव है, कैसे मोर पैलेटेबल फॉर द स्टूडेंट्स, हाउ टू मेक इट मोर
पैलेटेबल या इजी टू ग्रास्प और इजी टू अंडरस्टैंड, ये सारे के सारे इन टूल्स के इस्तेमाल से हम कर सकते हैं। अब एक और आपने देखा होगा कि हम लोग ज्यादातर केसेस में कहते हैं कि पिक्चर इज वर्थ 1000 ऑफ वर्ड्स, बट इससे भी ज्यादा पावरफुल एक और चीज देखोगे कि ए प्रोटोटाइप इज थाउजेंड्स वर्थ मीटिंग या वर्ड्स। और इसलिए आपने देखा होगा कि जहां पे भी जो इंजीनियरिंग का है, कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स जहां पे होते हैं, कॉम्प्लेक्स फिनोमिना होते हैं, वहां पे मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी मेक यूज ऑफ प्रोटोटाइप्स, बोथ वर्किंग एंड नॉन वर्किंग। वर्किंग हो तो नथिंग लाइक दैट, वो बहुत ही पावरफुल हो जाते हैं प्रोटोटाइप्स। और उन प्रोटोटाइप्स में आपका ऑडियो और वीडियो, ये दोनों चीजें तो होती, इसके अलावा भी एडिशनल फीचर सारे के सारे, जो 7 सेंसेस की जो बात करते हैं, वो सातों के सातों सेंसेस इन प्रोटोटाइप्स में समाहित होते हैं। बट दे आर कॉस्टली टू मेक, नॉट इजी टू मेक। उसके लिए आपको मॉडलिंग के पूरी नॉलेज होनी चाहिए, एंड इट्स कॉम्प्लेक्स। तो इसका पूरा आपको ये देखना पड़ेगा कि इसका इकोनॉमिक वायबिलिटी वन हैज टू कंटिन्यूस बेसिस पे देखनी पड़ेगी। ये नहीं कि भाई हर जगह आपने केवल प्रोटोटाइप्स या मॉडल ही इस्तेमाल करने, वेरेवर इट इज रिक्वायर्ड, तो जो सिचुएशन की डिमांड के हिसाब से इन टूल्स का इस्तेमाल हम लोगों को करना चाहिए। तो बेसिकली आप देखोगे कि किसी भी एवी एड्स का जो पर्पज ये है कि हाउ क्लियरली वी कैन रिप्रेजेंट द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन टू आवर सेंसेस, so that the learner or the student can appreciate it easily। पूरा पर्पस सारा इसका यही है कि कैसे जो नॉलेज को रिप्रेजेंट किया जाए, which can be easily assimilated by the learner। और किसी भी एवी एड्स के ऑब्जेक्टिव क्या है? इट सप्लीमेंट्स द स्पोकन वर्ड्स। अब जो हम बोल रहे हैं उसको मैं किसी एग्जाम्पल के थ्रू आपको दिखा दूं तो आपको लगेगा यार बहुत बढ़िया। जैसे आप 7 सेंस ऑर्गन्स की बात की, तो कई जगह हमने उनके फोटो दिखा दिए, पता चला यार हियरिंग है वो ईयर से होगा, नोज स्मेल को देखेगा, टंग है वो आपकी टेस्ट को देखेगा। तो इसी तरह से ये सप्लीमेंट कर रहे हैं, जो मैं बोल रहा हूं उसको ये इजीली डाइजेस्टेबल फॉर्म में इंफॉर्मेशन पेश की जा रही है। And to make the subject real, vivid, interesting and lifelike। पूरी जो स्टोरी टेलिंग में भी कई बार आपने देखा ना, there are some good story tellers जो लगता है कि they present the things in such a way कि as if the things are happening in front of your eyes। जिस तरह से आप देखो कि महाभारत में पूरी की पूरी पिक्चर ऐसे पेश कर रहे थे कि बैटल फील्ड के अंदर वो खुद बैठा है और राजा को इंफॉर्मेशन जा रही है। और दूसरा इसका जो इसेंशियल पार्ट है कि टू डेवलप कंसेप्ट्स, इंप्रूव एटीट्यूड्स एंड एक्सटेंड अप्रिशिएशन एंड इंटरेस्ट। अब कोई चीज जब समझ में आने लगती है तो एंगेजमेंट लेवल भी बढ़ना शुरू हो जाता है, इंटरेस्ट आने लग जाता है। तो हाउ टू मेक योर कंटेंट इंटरेस्टिंग टू द पार्टिसिपेंट, दैट इज द रोल ऑफ दिस एवी एड्स। अब इनका मोटे मोटे क्या खास चीज होनी चाहिए कि इट हेल्प्स इन डेवलपिंग द परसेप्शन ऑफ द लर्नर। तो लर्नर का परसेप्चुअल एक्विटी जिसकी मैं बात कर रहा था शुरू में, प्रोफेसर रामचंद्र की जो बुक से द अटेकर्स एडवांटेज में, तो परसेप्शन का कैसे इंप्रूव किया जाए, एंड विच इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स, एंड इट एड्स इन पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग एंड ट्रेनिंग। It facilitates in understanding and comprehension, and it provide reinforcement to the learners। reinforcement का मतलब जो कंसेप्ट हमने बोला उसको हम दोबारा से किसी एग्जाम्पल के थ्रू, किसी
चार्ट के थ्रू, किसी पिक्चर के थ्रू, किसी मॉडल के थ्रू हम उसको दिखा के दोबारा से उसको रेनफोर्स कर रहे हैं, सो दैट ही डज नॉट फॉरगेट इन लाइफ। जैसे मैंने अपने रियल लाइफ सिचुएशन आपके साथ शेयर किया, एंड इट इंक्रीजेज द रिटेंशन ऑफ द लर्नर्स। और जितना ज्यादा लर्नर का एंगेजमेंट बढ़ेगा उतना ही उसकी रिटेंशन उस कंसेप्ट की, उस नॉलेज की ज्यादा देर तक रहेगी। तो अब मेरे को लगता है कि रुपेश राय साहब कुछ फर्दर आप ऐड करिए जो हमने जो बोला, इसके अलावा और क्या चीज हो सकती है इसके अंदर। ऑडियो विजुअल एड्स में सर कवर ही हो गया। क्या चीज होती है ऑडियो विजुअल में? आप कुछ बताइए। जैसे हमने शुरू में जब BHEL ज्वाइन किया था तो हमने सबसे पहले इस तरह के पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन उन दिनों नहीं होते थे। जी सर। और जब ट्रेनिंग ज्वाइन किया था तो BHEL के अंदर काफी रिगरस ट्रेनिंग होती है, 1 साल की ट्रेनिंग होती है, जिसमें 6 महीने आपकी जो क्लासरूम प्लस ऑन द जॉब ट्रेनिंग से पहले जो होता है ना, वर्कशॉप के अंदर आपको ड्राइंग प्रैक्टिसेज होगी, आपको फाउंड्री में लेके जाएंगे, वेल्डिंग में लेके जाएंगे, कारपेंट्री में लेके जाएंगे, सब जगह छोटे छोटे सब सारी की सारी चीजें दिखाएंगे। देन इंडस्ट्री विजिट्स होंगी, शॉप्स में लेके जाएंगे। द पर्पज, इस पूरी चीजों का पर्पज क्या था? एक तरीका तो होता है कि भाई आपको रीडिंग मटेरियल दे देते एंड दे सेड कि आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई। लेकिन कंपनी इतना मैसिव खर्चा करती थी, और नॉट ओनली दैट, हम लोगों को पूरी फैक्ट्रीज ऑल अक्रॉस इंडिया में कम से कम 5-6 बड़ी फैक्ट्रीज में विजिट कराना, वहां के ट्रेनिंग जो फैकल्टीज को बुला के ट्रेन कराना, वर्कशॉप्स में ले जाना, मशीन्स के बारे में बताना। तो ये क्या है कि आपकी ट्रेनिंग बहुत एंगेजिंग हो जाती है, और 38 इयर्स की सर्विस के बावजूद भी वो बहुत सारी चीजें हम आज भी विजुलाइज कर पाते। देन वी वर टेकन टू ए पावर प्लांट ट्रेनिंग एट कोराडी, वहां पे Right, पूरे sir. के पूरे बैच को कोराडी में एक होटल में रखा गया, और रेगुलर बेसिस पे हम लोग पावर प्लांट में जाते थे। पावर प्लांट की पहले थ्योरेटिकल ट्रेनिंग होती थी, उसके बाद वो पावर प्लांट में जाके, तो इसको बोलते थे पावर प्लांट फैमिलराइजेशन ट्रेनिंग। तो ऐसे कंपनीज मैसिव खर्चा करती हैं कि एक बंदे को जस्ट इंडक्ट करने से पहले, दैट इज, और इसमें सारे टूल्स का इस्तेमाल होता है। तो उन दिनों जो सबसे ज्यादा देखा जाने वाला टूल था वो था, आप बताइए उन दिनों सबसे ज्यादा देखे जाने वाला टूल क्या हो सकता है? क्योंकि आप लोग भी काफी हम सर हमारे इतने सीनियर तो नहीं है, लेकिन आप जी लोग जी भी अभी 40s की रेंज में, हम यस 63 के हो गए। तो सर। ओके कौन सा चीज यूज होता था उन दिनों? सर उस समय पोस्टर्स और ये फ्लिप चार्ट्स यही सब आ मैक्सिमम होते थे। एक तो फ्लिप चार्ट, जो भी कोई आएगा वो अपना फ्लिप चार्ट लेकर साथ आता लेके था। आएगा। यस यस। उसके बाद एक चीज और थी, जो ओवरहेड प्रोजेक्टर। ओवरहेड प्रोजेक्टर जो ट्रांसपेरेंट शीट्स होती थी, उस तो पर हाथ से ही लिख करके ट्रांसपेरेंसीज बन होते थी, लोग पहले उनको बनाते थे, फिर इन ट्रांसपेरेंसीज के थ्रू वो, तो उसको दैट प्रोजेक्ट यूज्ड में। टू बी द मोस्ट इफेक्टिव एंड यस यस पावरफुल टूल। और ये जो बड़ी कंपनी जो होती थी उन्हीं के पास ही जनरली होता यस था, यस हर आदमी के पास तो नहीं। तो हर आदमी तो अपना जो फ्लिप चार्ट्स का इस्तेमाल करता था, यस सर। और बाकी के लोग ये ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी भी अपने आप में कॉस्टली थी, और ये ओवरहेड प्रोजेक्टर भी कॉस्टली था, और दूसरा इसका एक जो बल्ब आता था वो भी बहुत महंगा यस आता था। यस और द लाइफ ऑफ द बल्ब यूज्ड टू बी सो शॉर्ट, यस कब बंद हो गया तो पता चला आपका प्रेजेंटेशन बीच में रुक गया। तो एक आपके पास स्पेयर रखते थे स्टैंड उसको बाई बल्ब भी हो और एक स्टैंड बाई OHP भी प्रोजेक्टर। हो। तो ये हम लोगों ने ज्वाइन करने के बाद भी बहुत लंबे टाइम तक इसका इस्तेमाल किया। एंड आई टेल यू, जब मैं एडिशनल जनरल मैनेजर बना था, तो आई वाज इन कॉर्पोरेट ऑफिस लुकिंग आफ्टर ऑपरेशंस मैनेजमेंट। तो जो बजट एक्सरसाइज जो होती थी, यूनिट्स में भी जाते थे, तो सारी की सारी एक्सरसाइज थ्रू ओवरहेड प्रोजेक्टर्स होता था। स्लाइड्स बनाते थे रात में 12-12, 1-1, 2-2 बजे तक बैठ के, फिर सुबह डायरेक्टर्स आएंगे जी प्रेजेंट करना है। तो पहली बार ये पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन, हमारे यहाँ पे एक MCM होती है, मैनेजमेंट कमेटी जिसको बोलते हैं, तो दैट कंसिस्ट ऑफ डायरेक्टर, CMD और ED। तो इतना टेंशन, यार ये चालू करेंगे पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा, एंड वी डिड थोरो एक्सरसाइज। और पहली बार पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हम लोगों ने बजट
सब्जेक्ट का MCME किया था, एंड यू वोंट बिलीव इट वाज सो सक्सेसफुल। जो इंफॉर्मेशन मांगे फ्लाइट स्लाइड नंबर डालो वहीं पे पहुंच जाए, और वो पूरी की पूरी सीक्वेंस ऑफ स्लाइड्स लोगों को दे रखी थी। एंड द कंटेंट वाज सो मच कि जो पूछो उसका बैकअप रेडीली अवेलेबल था। तो किस तरह से टेक्नोलॉजी हैज प्रोग्रेस्ड, और इसमें सारे के सारे कंपोनेंट आपके आगे आजकल के जो प्रेजेंटेशंस होते हैं, इसमें ऑडियो यू कैन एम्बेड, वीडियो यू कैन एम्बेड, टेक्स्ट यू कैन एम्बेड, फॉन्ट साइज, एनिमेशंस यू कैन कैरी आउट। तो ये इतने सारे टूल्स हैं, बट ज्यादातर केसेज में अभी भी लोग क्या ऑडियो वीडियो का चार्ट्स से लेकर के फ्लिप चार्ट्स बना लिए, बोर्ड्स बना लिए, नोटिस बोर्ड्स बना लिए, ये है। बट आज के टाइम में one must know कि yes these are the tools, and बहुत सारे केसेज में जहाँ पे ये चीजें अवेलेबल नहीं, but now your mobile phone has got all the features. in fact आपका इमेजिनेशन ही शॉर्ट पड़ेगा, अदरवाइज उसमें ऐसी सारी चीजें हैं जो आप उसमें इस्तेमाल करके यू कैन मेक योर प्रेजेंटेशन वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। बट कई बार क्या होता है कि जब सारी चीज आपके हाथ में आ जाती है तो यू स्टार्ट पुटिंग एवरीथिंग एंड यू मेक ए मैस ऑफ इट। ओवरबर्डन हो जाता है, जो भाव है, जो ऑब्जेक्टिव है वो कहीं अंडरनीथ बरी हो जाता है, एंड पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन बहुत क्लस्टर्ड हो जाता है, कंफ्यूजिंग हो जाता है, एंड उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आना शुरू हो जाता है। तो आप ये देखोगे कि ऑडियो और विजुअल एड्स में, ऑडियो एड में तो ज्यादातर आप देखोगे कि भाई रेडियो है, पुराने टाइम में आप देखो कितनी सारी चैनल, आज के टाइम भी ज्ञानवाणी है आपकी, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ओपन स्कूलिंग है, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी है, इनके बहुत सारों के चैनल्स हैं जो पहले ओनली ऑडियो फॉर्म में होते थे, और बहुत सारे इवन दूरदर्शन के ऊपर भी जो ज्ञान से रिलेटेड प्रसारण आते थे। तो उसमें ज्यादातर यूज क्या होता था कि आपका रेडियो, और ये टेक्नोलॉजी कहाँ पे यूज होती है, जहाँ पे रीच आपको मैसिव करनी है। 30-40 लोगों की बजाय यदि ऑडियंस आपका थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स स्प्रेड अक्रॉस ज्योग्राफी है, तो ये बहुत पावरफुल था। फिर धीरे धीरे आपने देखा कि टीवी का हुआ, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आए, फिर उसके बाद एशिया गेम्स के जो गेम्स हुए, उस टाइम फर्स्ट टाइम इंडिया के अंदर कलर ट्रांसमिशन हुआ। तो इट ओपन ए प्लेथोरा ऑफ नॉलेज ट्रांसमिशन। इसमें आपके फिर नाटक, फिल्म और बहुत सारे छोटे छोटे ट्रेनिंग से रिलेटेड भी बहुत सारे चैनल्स खुल गए। और इसमें जो एक है आपका प्रोजेक्टेड और नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल एड्स। तो प्रोजेक्टेड में जैसे ओवरहेड प्रोजेक्टर की हमने बात किया, स्लाइड्स एंड ट्रांसपेरेंसीज की बात की, फिल्म स्ट्रिप्स होती थी पुराने पहले टाइम में होते थे, एक स्लाइडर टाइप की चीज होती थी। ये हमारे यहाँ पे कई बार बहुत हाई लेवल का प्रेजेंटेशन होता था, तो उसमें छोटी छोटी फिल्म्स बनवाते थे, और उसको फिल्म बनवाने के लिए एक्सटर्नल एजेंसीज का इस्तेमाल करते थे, एंड दे यूज्ड टू मेक दोस स्मॉल कितना मैं बताऊं आपकी, एक माचिस की डिब्बी के बराबर वो फिल्म होती थी, उसको स्लाइडर में डालते थे, और वो जस्ट ओवरहेड प्रोजेक्टर होता, उसी तरह से वो दिखाते थे, एंड अच्छी क्वालिटी का ये होता था। तो अब वो सारे के सारे म्यूजियम्स में मिलेंगे, अभी वो सारी टेक्नोलॉजी सारी की सारी ऑब्सोलीट होगी। कंसेप्ट अभी भी बरकरार है, बट द टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज विच वी यूज अर्लियर, वो सारा का सारा अभी हमारा नए फॉर्मेट में अवेलेबल हो गया, विच इज कॉस्ट इफेक्टिव एंड बहुत ही रीच में है। वो कोई भी उसको इस्तेमाल कर सकता, जरा थोड़ा पढ़ के, और यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, बहुत प्रेजेंटेशन मटेरियल मिल जाएगा, हाउ टू मेक यूज ऑफ दीज टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज। नॉन प्रोजेक्टेड के अंदर आपने देखा हो जैसे पिक्चर्स एंड इमेजेस हैं, ग्राफिक्स हैं, और बहुत सारे बोर्ड्स वगैरह जैसे आपने लगा दिया, चार्ट्स लगा दिया, तो ये सारे के सारे नॉन प्रोजेक्टेड में है। और ऑडियो विजुअल के अंदर जो आजकल जैसे आप देखोगे वीडियोज है, टेलीविजन है, मूवीज है, कंप्यूटर और इंटरनेट, यूट्यूब इज वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ नॉलेज। आपको कोई भी ट्रेनिंग में आपको किसी ग्रुप को दे रहे हैं और कोई एग्जाम्पल दिखाना है,
तो पहले आप तैयारी करके जाओ और उसका लिंक अपने साथ रखो। यू जस्ट क्लिक ऑन द लिंक एंड देन यू विल फाइंड कि वो पूरी की पूरी चीज आपको आपके प्रेजेंटेशन में दिखाई दे जाएगी। तो ये आपके ऑडियो विजुअल एड्स आ गई। फर्दर इसका और ज्यादा क्लासिफिकेशन करेंगे तो प्रोजेक्टेड एड्स में फिल्म्स हैं, प्रोजेक्टर्स, स्ट्रिप्स, तो ये बहुत सारी चीजें, ओवरहेड प्रोजेक्टर से लेके ग्राफिक एड्स आ गई, डिस्प्ले बोर्ड्स आ गए, 3D एड्स आ गए, ऑडियो एड्स आ गए, और फर्दर में कंप्रीहेंसिव चार्ट मेरे को कहीं से मिला तो मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए इसको यहाँ पे किया है। देन सबसे बड़ा एक ये जो है एक्टिविटी एड्स, ये बहुत ही पावरफुल होता है कि ऑडियो विजुअल के साथ साथ आप यदि किसी एक्टिविटी के अंदर इमर्स करते हो अपने पार्टिसिपेंट्स को, बट अगेन ये डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप का नॉलेज या इंफॉर्मेशन उनको ट्रांसफर कर रहे हो, एंड दीज आर वेरी वेरी पावरफुल। जैसे फील्ड ट्रिप्स एंड एक्सकर्शंस की जब बात करते हो तो आई विविडली रिमेम्बर कि जब हम इंजीनियरिंग कॉलेज में थे तो वी वर टेकन आउट फ्रॉम कॉलेज इन फाइनल ईयर, तो एक थर्मल पावर प्लांट दिखाने के लिए अलीगढ़ के पास में एक थर्मल पावर प्लांट था, तो वहां पे लेके गए। तो जो कुछ चीजें वहां पे देखी वो आज भी मैं अपनी आंख क्लोज करूंगा तो आई कैन सी कि यार कोल को कैसे क्रश करते हैं, कैसे कन्वेयर बेल्ट से जाता है, कैसे चिमनी दिखती है, ये सारी की सारी चीजें, तो ये दीज आर वेरी वेरी पावरफुल। जो थ्योरी हमने पढ़ी क्लास में, लेक्चर्स वगैरह जो अटेंड किए, और यदि आपने फील्ड में ये सारी चीजें दिखा दी तो बहुत ही एक जबरदस्त विविड एक्सपीरियंस हो जाता है। उसके बाद वी वर टेकन टू, उसी ट्रिप में एक हाइड्रो पावर स्टेशन के ऊपर, ये कालागढ़ पड़ता है इधर, आई थिंक नैनीताल के आसपास कहीं पे है, और पूरा का पूरा कैसे पेन स्टॉक होता है, कहाँ पानी स्टोर होता है, कैसे टरबाइन की ब्लेड्स दिखती हैं, कैसे आपका जनरेटर उससे कनेक्टेड है, और उसकी तस्वीर भी आज की डेट में you know those are so powerful and immersive। तो फील्ड ट्रिप्स एंड एक्सकर्शंस भी हो सकते हैं, एग्जीबिशंस आर वेरी वेरी पावरफुल मेथड ऑफ ट्रांसफरिंग नॉलेज, और ये हर बार हर एक थीम स्पेसिफिक एग्जीबिशंस एटलीस्ट दिल्ली वाले लोगों के लिए तो बहुत ही फायदा है कि हर थीम पे, हर टॉपिक पे, कभी सोलार पे, कभी आप देखोगे कम्युनिकेशन पे, कभी इलेक्ट्रॉनिक्स पे, और सो मेनी थीम्स के ऊपर कुछ कुछ होता रहता है बच्चों को या कहीं किसी को, जैसे म्यूजियम्स हैं, एक्वेरियम्स हैं, और सो मेनी टूल्स आर देयर ना। तो इन सब का इस्तेमाल आप अपनी नॉलेज को फर्दर पैलेटेबल बनाने के लिए, डाइजेस्टेबल बनाने के लिए, एक रिमेम्बरेंस बनाने के लिए सारे इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स में वी टेक पार्टिसिपेंट्स टू फील्ड ट्रिप्स, फील्ड एक्टिविटीज, क्लासरूम से बाहर ले जाके करते हैं, तो ये सारी की सारी चीजें बहुत अच्छे उनको याद करते हैं। और जितने भी पार्टिसिपेंट्स आते हैं तो कहते हैं सर आप सारे दिन क्लास में बिठा के रखते हो, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, काइंडली एटलीस्ट हैव 1 or 2 days कंपोनेंट ऑफ आउटडोर ट्रेनिंग। तो इनका बहुत रोल होता है, इट ब्रेक्स मोनोटोनी, ग्रुप कोहेशन को बढ़ाते हैं। तो ये सारी भी चीजें आपको इसमें इस्तेमाल करनी है टू मेक योर ट्रेनिंग मोर इफेक्टिव। अब आप ये देखोगे कि कितना इफेक्टिव रोल होता है आपकी ट्रेनिंग्स को, कि लर्निंग पिरामिड में लेक्चर्स और रीडिंग का कहते हैं कि ओनली 15% तक की नॉलेज एसिमुलेट कर पाते हैं। ऑडियो विजुअल टूल्स आपने इस्तेमाल किया तो देखोगे कि आपका कितना 20% मोर इफेक्टिवनेस आ जाती है। तो टोटल आप देखोगे कि 35% रिटेंशन लेवल आता है, और उसके बाद भी मोर एंगेजिंग बनाने का है तो डिमॉन्स्ट्रेशंस का बहुत बड़ा रोल होता है, जो मैंने आपको बताया बायोलॉजी में, ज्योग्राफी में, इंजीनियरिंग में, और अपने जो HR रिलेटेड, लीडरशिप रिलेटेड, इसके अंदर जो रोल प्लेइंग वाले हैं, डिस्कशंस हैं, ग्रुप डिस्कशंस हैं, इस तरह के करके तो इनसे फर्दर 30% रिच हो जाती है। तो दे प्ले ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन। तो इन एड्स को यदि इस्तेमाल किए बिना केवल बुक लेके आ गए और आप
you just start reading या कुछ अपने points बता के चले गए without involving and engaging the participants, तो वो बहुत ज़्यादा effective नहीं होगा. Discussion is a very very powerful method of transferring knowledge. तो discussion तक आते आते इनफैक्ट ये देखा कि हमने इसको कि 50% नॉलेज ट्रांसमिशन हो जाती है, और प्रैक्टिस बाय डूइंग में तो आप देखोगे कि प्रैक्टिकली इट लीड्स टू लॉट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज. अब यहाँ पे एक जैसे एग्जांपल दे रहे हैं कि आपको कॉम्प्लेक्स कोई ट्रेनिंग देनी है, जैसे ड्रोन्स की ट्रेनिंग हम दे रहे थे, तो ड्रोन्स के मॉडल को दिखाया, पहले ट्रेनर ने ड्रोन्स के सब असेंबलीज कंपोनेंट सारी चीज बताई, एंड देन यू आस्क द स्टूडेंट्स टू मेक द ड्रोन्स. तो ये जो नॉलेज ट्रांसमिशन होगा उनका, दैट विल बी वेरी वेरी इफेक्टिव, और ये बहुत लंबे अरसे तक उनको याद रहेगा. एंड इफ दे कंटिन्यू टू वर्क इन दिस पर्टिकुलर फील्ड, तो दे विल अचीव ए सॉर्ट ऑफ मास्टरी ऑन दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट. तो सर अभी जैसे अब यहाँ पे हम थोड़ा सा एक ब्रेक लेके और अब बाकी के पार्टिसिपेंट से बात करते हैं कि भाई ऑडियो विजुअल इसमें और क्या होना चाहिए और क्या क्या हो सकता है, क्योंकि आप लोग भी सारे एक्सपीरियंस लोग हो, तो वी हैव टू लर्न फ्रॉम ईच अदर, यू नो. तो जितेंद्र जी आप थोड़ा बताइएगा, कुछ लाइट थ्रो करिए, क्योंकि किसी भी ट्रेनिंग में यू नो टीचिंग इज अगेन ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फर्दर एसिमुलेशन ऑफ द ट्रेनिंग. यदि आपने जितना सीखा है उसके बाद आप उसको शेयर करते हो, तो नॉट ओनली हेल्पिंग अदर्स बट यू आर हेल्पिंग योरसेल्फ, कि वो फर्दर सेटल डाउन हो जाती है आपके सिस्टम में. तो जितेंद्र कुमार जी, आर यू एबल टू हियर मी सर? मिस्टर जितेंद्र कुमार जी, हेलो. चलिए, जितेंद्र जी से बात नहीं हो पा रही है, रुपेश राय जी से बात करते हैं. आई थिंक सर मीना दिस साइड. अरे वाह मीना जी, ग्रेट, बताइए. Sir, we use audio video in our induction sessions, and after that we have a common application for all learners, not only for sales, frontline sales. We have till VP, we have some application where he has to gone through with some learning nuggets along with videos and FAQs and characteristics of that product, process, everything. वेरी गुड, बहुत बढ़िया. इनफैक्ट आजकल ये सारे के सारे टूल्स जो फास्ट मूविंग प्रोडक्ट्स वाली कंपनीज हैं, नॉन फास्ट मूविंग में भी, जैसे हम लोगों ने एक ई लर्निंग मॉड्यूल हार्वर्ड से खरीदा था, एंड यू नो पूरे उस लर्निंग मॉड्यूल में देयर वर स्मॉल वीडियोस, स्मॉल एक्सरसाइजेज और क्विजेस थी और असेसमेंट्स थे. हाँ जी सर. एवरी स्टेज पे यू नो यू आर इन ए पोजीशन टू कैप्चर द प्रोग्रेस मेड बाय द पार्टिसिपेंट्स. उन्होंने कितना सारा पढ़ा है, कि कितने स्कोर किए हैं, और उनको रेगुलर बेसिस पे फीडबैक मिलता था, असाइनमेंट्स मिलते थे. तो दिस इज ए वेरी प्रोफेशनल वे ऑफ इम्पार्टिंग ट्रेनिंग एंड टू द पार्टिसिपेंट्स. बहुत बढ़िया. बिकॉज अभी रिसेंटली सर हमारा पोस्ट पे बहुत ध्यान है. कंपनी हैज स्टार्टेड न्यू वेंचर विद पोस्ट को लेके बहुत एग्रेसिव है. सो दे डिजाइन्ड दैट सब videos, nuggets, themes, quiz, some case studies in that e-learning app, and that is mandatory for everyone to do that activity, and even COMD is not spared for that. So each and every person is mandatory. क्योंकि आजकल ऑर्गेनाइजेशंस को यदि सर्वाइव करना है तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग एजिलिटी. जो BHL में जब हम थे तो एक लर्निंग वीक हर साल ऑर्गेनाइज करते थे, 1 वीक का पूरा. उसका द होल पर्पज वाज हाउ टू इम्प्रूव द लर्निंग एजिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और उस पर तरह तरह के एक्सरसाइज करते थे, तरह तरह के इवेंट्स, प्रोग्राम्स, ताकि एवरीबॉडी बिकम्स अवेयर कि हाउ लर्निंग इज सो इम्पोर्टेंट फॉर इंडिविजुअल ग्रोथ, individual upliftment, as well as the organizational competency development.
कि पूरी We started, ऑर्गेनाइजेशन को। हाँ जी सर वी स्टार्टेड विद इंडक्शन फर्स्ट। जब हम इंडक्शन लेते थे तो उसके बाद ना जो भी टॉपिक्स उसमें होते थे तो वो उस ई लर्निंग ऐप में जाके उसको, जैसे हमने क्लास वर्क पढ़ा और घर जाके होमवर्क करते थे और फिर उसका क्विज अटेम्प्ट करते थे, तो उसमें वो वीडियोस डालते हैं, उस जो भी चीज उन्होंने उस पढ़ी उस दिन की उसकी वीडियो होगी, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, उसके बेनिफिट्स होंगे, सब कुछ उसमें मेंशन होगा और एट द एंड उसको वो असेसमेंट क्लियर करना होता है। तो जो आपने रूम में पढ़ा, एवरीडे यू नीड टू कंप्लीट दैट एक्सरसाइज इन ई लर्निंग ऐप, तो आपका रिकैप हो जाता है सर। क्लास वर्क के साथ होमवर्क इज मैंडेटरी। और फिर सबसे बड़ी बात ये होती है ना कि इन टूल्स का जो बहुत बड़ा एडवांटेज ये हो जाता है कि यू कैन लर्न फ्रॉम एनीवेयर, फ्रॉम एनी डिवाइस। तो 24/7 पे आप पूरा एंगेज हो सकते हो कि जब आपको अभी टाइम नहीं मिला तो बाद में, बट इट इज बिकमिंग मैंडेटरी। और इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन उनको अवार्ड्स भी देती हैं, रिवार्ड्स भी देती हैं, और मेनी ऑर्गेनाइजेशंस आर नाउ मेकिंग पार्ट ऑफ देयर असेसमेंट, एनुअल असेसमेंट का पार्ट भी है कि भाई इतने परसेंटेज मार्क्स आपके रखें। जैसे मेरी डॉटर हो किसी कंपनी में काम करती है तो वो कहते हैं कि हमको मैंडेटरीली ये नेसेसरीली ये सारी ट्रेनिंग्स तो करनी ही करनी पड़ती है, ऑनलाइन करो ऑफलाइन करो, आप ये करना है। Not only assessments, अगर if the person is not doing on a regular basis, if the given nuggets with timelines, अटेंडेंस नहीं लगा पाएगा सर, अटेंडेंस ब्लॉक हो जाता है। बताइए सी तो नाउ कितनी ऑर्गेनाइजेशन सब बड़ी सेंसिटिव हो रही हैं फॉर द कंटिन्यूस अपडेशन ऑफ द नॉलेज। बहुत बढ़िया, वंडरफुल। चलिए सर, रुपेश राय साहब आप कुछ ऐड करिएगा फर्दर इसमें। देखिए इन्होंने, मैडम ने तो इतना कुछ, मीना जी ने तो इतना कुछ बताया कि रियली आई ओपनिंग है। Right, sir. Actually, we have used small clips of videos, I mean, many in training programs. जी जी। So, उसका ज़्यादा यूज करते थे so that कि impact उसका much more होता था instead of visuals. So, क्योंकि हमारे यहाँ ऑपरेशनल ट्रेनिंग जो होती थी स्पेशली लॉजिस्टिक इंडस्ट्रीज में, क्योंकि ट्रेन ऑपरेटिंग कंपनी थी, तो छोटे छोटे क्लिप्स बनाए जाते थे स्पेशली। करेक्ट कि ट्रेन आ रही है तो कैसे हैंडल करना है, वो फिर ट्रेनिंग में हम यूज करते थे। बिल्कुल, जैसे आप देखोगे ना, सेफ्टी एक एरिया है जहाँ पे इस तरह के टूल्स का आप बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। कि कोई क्रेन जा रही है, किस तरह से मिस हैंडलिंग से आपका एक्सीडेंट हो गया, एंड बाय फॉलोइंग द प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस आप कैसे अवॉइड कर सकते हो मेजर कैटास्ट्रॉफी। कैसे फायर आ गई तो फायर को कैसे एक्सटिंग्विश करोगे, कैसे क्या क्या, तो ये वीडियोस की फॉर्म में और चार्ट्स की फॉर्म में बहुत अच्छे से ये सब चीज दिखाई देते। चलिए अब जितेंद्र जी आ गए हमारे, अब बहुत बढ़िया। आई थिंक जितेंद्र जी काइंडली ऐड समथिंग विद योर रिच एक्सपीरियंस। आप लोग सारे के सारे स्टालवार्ड्स हो। Sir, the industry which I belongs to, I normally used video clips in the beginning of my training program. So I shoot that this video clips during the field training, during the when I'm just conducting the on-job training. Like I'm just telling you the real incident when I was in Coca-Cola. क्योंकि यहाँ पे पर्पज रियल का है, बाकी का थ्योरेटिकल तो so much of literature is there आजकल। तो we are more interested in listening the real life experiences and cases. Please. So when I was in Coca-Cola, so Coca-Cola just provide the free kind of fridge to every retailer. So the Coca-Cola just has a international run program that is Right Execution Daily. That called RED, R-E-D. In the RED program, the field force has to be clarify all the foreign materials which is not from the Coca-Cola portfolio. So he has to remove the foreign material from the vesicular, and he has to be just put the brands like in the sequence. Like the brand will be start from Coca-Cola, Thumbs Up, Limca, Sprite, Fanta, Minute Maid, Maaza, then Kinley Water. Correct. That was the sequence of the keeping the product inside the vesicular. So we made the program through mobile and run the training program. How we have to be clean the vesicular like this, and how we kept the products inside the vesicular like this. Because in this activity, Coca-Cola hired a third-party audit agency, Nelson, to give the score on that particular vesicular. If the first, inside the vesicular, if there are 3 shelves, the first shelf will be for 20 marks, second shelf will be the 40 marks, and the third shelf will be of 50 marks. Wonderful. So out of 100,
So they will provide the vesicular, how much purity of the vesicular inside of this. So we have just recorded this video through mobile, and we run the in the training program, and we clearly explain to each and every point about this RED activity to our field force. So that was the activity we have already done, and we are doing that from company to company to company to company. बहुत बढ़िया. इनफैक्ट इस तरह के प्रोग्राम से क्या है कि जो लार्ज मल्टीनेशनल कंपनी है, दे आर इन ए पोजीशन टू स्टैंडर्डाइज देयर प्रोसेसेस. आप देखोगे कि कितने कितने बड़ी जो कंपनीज हैं, जो पिज्जा बर्गर, बड़ी बड़ी जो कंपनीज आप देखोगे कि उनका लुक एंड फील एवरीवेयर, यू कैन गो एनी पार्ट ऑफ द प्लेनेट, आपको वो वही नजर आएगा. तो ये पावर ऑफ ट्रेनिंग है बेसिकली, कि जो अपने प्रोसेसेस को स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं और थ्रू कंटिन्यूस बेसिस ट्रेनिंग, और उसमें इनका ऑडियो विजुअल टूल्स का बहुत बड़ा रोल रहता है. अब सुदीप जायसवाल जी. सर आई विल शेयर 2 experiences. राइट सर. एक तो एज एन एम्प्लॉय और एक एज अ कंसल्टेंट. जब मैं एनटीपीसी में था तो वहां पे हमने देखा था कि जो टरबाइन है और जनरेटर है जी, नॉर्मली खुले नहीं मिलते हैं हम्म, एक्सेप्ट फॉर ओवरहॉलिंग के टाइम पे. और हाँ बिल्कुल, वो बड़ा रेयर ओकेजन होता है. हाँ, तो अब जो नए इंजीनियर्स आते थे उनको ट्रेन करना होता था ऑन बॉयलर्स, टरबाइन्स एंड जनरेटर्स. तो हम कंपनी ने वीडियोस बनाए थे ड्यूरिंग ओवरहॉलिंग, खुले हुए पार्ट्स का कैसे खोलते हैं, क्या क्या उसके कंपोनेंट्स होते हैं. सो डिटेल्ड वीडियो वाज मेड and it was shared across the company, and जो नए ETs हमारे executive trainees आते थे, so they used to be given the visual demonstration of all those videos. It was a very very effective training tool. मेरे सभी साथियों ने जो शेयर किया वो हाई टेक ट्रेनिंग मटेरियल का किया है. मैं इसके रिवर्स जाता हूँ. मैं जब आई वाज वर्किंग एज अ कंसल्टेंट फॉर वन ऑफ द कंपनीज, हमें एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रोल आउट करना था पैन इंडिया. तो छोटे छोटे शहरों में लॉन्च करना था. अब वहाँ पावर कट वाज अ बिग बिग प्रॉब्लम फॉर अस. यस, बहुत बढ़िया. अब इसको मैं कैसे टैकल करूं, दैट वाज अ चैलेंज फॉर अस. सो व्हाट वी डिड, जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस होते हैं उसको हम लोगों ने बड़े बड़े जो फ्लिप चार्ट के साइज के फ्लेक्स में हम लोगों ने प्रिंट करा लिए. वाओ. And we use these flex prints as flip charts and PowerPoint presentation के जैसा ही थे, बिल्कुल उसी क्वालिटी के, एंड वो हम लोगों ने लोकेशंस पे शेयर किए. तो इट वाज वेरी वेरी इफेक्टिव. हमारा लॉस नहीं हुआ एक भी बिकॉज ऑफ पावर कट. हमारा ट्रेनिंग जो है निर्बाध रूप से चलता रहा. भाई जायसवाल जी, आपने कितना बढ़िया पॉइंट लेके आए हैं पूरे ग्रुप के लिए, कि कई बार है कोई सोचे कि भाई मुझे चांदनी चौक में जाना है, और वो सोचे कि मैं मर्सिडीज या फरारी लेके जाऊंगा, तो क्या है कि वो फेल उसका कोई यूज होगा ही नहीं. वो तो रिक्शा से जाएगा तो अपना काम बहुत अच्छे तरीके से निकाल के लेके आएगा. तो मनी टाइम्स कि हम लोग ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कि यार हाई टेक ट्रेनिंग मींस वो हर जगह चलेगी. नहीं, वो हर जगह नहीं चलेगी. इसलिए आप देखो डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स, उनके टूल्स होते हैं. और हाईटेक केवल मेट्रो सिटीज में ही चल सकती है हाईटेक. हाँ, तो जो जैसे मान लो आपको छोटे जगह जाना है, तो आपको कभी भी कोई जब ट्रेनिंग इंटरवेंशन प्लान करते हो और इस तरह के एड्स की इस्तेमाल करते हो, तो आप देखोगे कि भाई मेरे टारगेट ऑडियंस क्या है, उनके पास किस तरह के रिसोर्सेज है, उनकी लैंग्वेज कैसी है, वो किस तरह के कंटेंट को बेटर असिमुलेट कर पाएंगे. तो ये सारी की सारी बहुत चीजें. और आपने एक बहुत ही सक्सेसफुल एग्जांपल दिया कि जो पावर पॉइंट था कि वहां पे जाओगे तो पता चला बिजली नहीं होती. इवन आज की डेट में भी सर, यू वोंट बिलीव कि 10-10 घंटे, 12-12 घंटे बिजली नहीं आती. आज भी जैसे हमारे गांव में जाते हैं तो आप देखोगे कि 10-12 घंटे बिजली नहीं आती. दैट इज फैक्ट ऑफ टुडे. बिल आपका 2,500 रुपए 3,000 आएगा, लेकिन बिजली तो थोड़ी देर के लिए आएगी, एंड यू कांट डू एनीथिंग अबाउट दैट. तो ये इस तरह की जब भी आप जाओ कि भाई किस एरिया में, किस ज्योग्राफी में आपको ट्रेनिंग इंटरवेंशन देना है, तो दीज एस्पेक्ट्स मस्ट बी वेरी वेरी केयरफुली कंसिडर्ड व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग योर प्रेजेंटेशन. तो एड कौन सी इस्तेमाल करनी है वो देखो. डेजर्ट में जाना है तो आप देखो यार ऊंट की सवारी भी करनी पड़ेगी, पैदल भी जाना पड़ेगा. तो ये दिस इज वंडरफुल.
तो और रुपेश राय सर, आप कुछ फर्दर और ऐड करना चाहें? नहीं सर, राय ऑलमोस्ट सर, तो हो गया। हाँ, ऑलमोस्ट हो ही गया है। हम लोग हो ही तो गया है, बहुत चलो ज्यादा बहुत इसमें। बढ़िया सर। चलिए थोड़ा सा आगे जाते हैं। तो इस तरह की जो आप देखोगे कि कम्युनिटी रेडियो, और अभी तो इतने सारे देखोगे वेबसाइट्स बनी हुई हैं जहाँ पे बहुत सारे पोर्टल हैं जिसमें पूरी की पूरी बुक आपको ऑडियो फॉर्म में मिल जाएगी। और इसका एडवांटेज क्या होता है, जैसे कई बार हम जाते थे दफ्तर, अब यार इस पीरियड को कैसे इस्तेमाल करें, तो एक ऑडियो लेक्चर उसका डाउनलोड कर लिया, कान में आपके माइक्रोफोन लगा दिया सुनने के लिए, और आप आधा घंटे में एक कोई चीज आपने अपने इंटरेस्ट की सुन ली। तो ऐसी रिसोर्सेज आजकल बहुत सारे अवेलेबल हैं कि छोटे छोटे चीजें, उस टाइम मेमोरी इतनी आसानी से होती नहीं थी, तो ये सारे टूल्स बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर लेते थे। कोई सीडी में आपने पूरा डाउनलोड कर लिया, आपने कार में लगा दिया। तो सो मच मनी बुक्स आर अवेलेबल आजकल, ऑडियो बुक। कई बार रात में आप सो रहे, पढ़ने का इच्छा नहीं, आंख बंद करके चलो यार सुन लेते हैं। सुनना इज मोर इजी, देखने में थोड़ा सा ज्यादा कष्ट होता है, फटीग बढ़ता है। तो ये वाले जो टूल्स बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। लॉट ऑफ मटेरियल इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। पूरी की पूरी बुक आपको डाउनलोडेबल फॉर्म में मिल जाएगी, और आजकल तो डायरेक्टली इंटरनेट से आप कनेक्टिविटी स्टेब्लिश कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे वीडियोस तो अवेलेबल है, यूट्यूब जैसे बहुत सारे अदर चैनल्स अवेलेबल है, बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल है। अब जो कुछ खास मोटे मोटे चीजें हमें जो ध्यान में रखने की बात है कि एक तो ये है कि जब भी कोई एवी एड्स का जो सेलेक्ट करे, तो ये एक विशेष रूप से ध्यान में रखने वाली बात है। जैसे जायसवाल साहब ने बताया, एक बार रिमोट में कहीं जा रहे हो तो वहां पे ये सारी चीजें अवेलेबल हैं कि नहीं। अब वहां पे यदि बिजली अवेलेबल नहीं है, और उस तरह के पावर पॉइंट प्रेजेंट करने के लिए प्रोजेक्टर भी अवेलेबल नहीं है, स्मार्ट बोर्ड अवेलेबल नहीं है, और आप अपना मटेरियल उसी तरह से तैयार के जाओगे, तो देन देयर विल बी ए कंप्लीट फियास्को। तो कोई भी टूल सेलेक्ट करने से पहले यू मस्ट सी दैट इट इज सुटेबल टू द एज लेवल, ग्रेड एंड एनी अदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लर्नर, and should be interesting, motivating, and it should truly represent the real thing, and it should be in a position to realize the desired learning outcome. तो ये एक आपका ब्रॉड गाइडलाइन है। जब भी कोई एवी टूल आप सेलेक्ट करते हो तो ये रियलाइज करना जरूरी है। और देन उसके बाद इसका प्रिपरेशन थोड़ा इजी हो, लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज से बन जाए। अब आप सोचो कि यार कहीं बाहर से मंगवाएंगे, उतना आपके पास बजट नहीं होगा, तो ऑल दीज ये सारी कंपोनेंट्स भी बड़े ध्यान में रखने वाली बात है। देन इट मस्ट बी इजी टू हैंडल। कोई इतने बड़े चार्ट्स ना बनाओ कि जिसको हैंडल करना ही मुश्किल हो गया, इतने छोटे भी नहीं बनाओ। कई बार क्या चार्ट बना लिए, बट जो फॉन्ट साइज इतनी छोटी हो गई जो दिखाई नहीं दे रही, पिक्चर है वो रिलेवेंट ही नहीं। ज्यादातर केसेस में आप देखो कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में खासकर क्या आजकल क्या हो रहा है कि इतने सारी पिक्चर्स डाल देते हैं, इतने सारे एनिमेशन डाल देते हैं विच आर नॉट रियली नीडेड। तो इन सब से कि आपका हैंडलिंग पार्ट बहुत आसान होना चाहिए, एंड प्रेजेंटेशन जो फैसिलिटेटर शुड बी कंफर्टेबल टू प्रेजेंट इट। इसके बाद जो रेस्पॉन्स है कि हर प्रेजेंटेशन के बाद पार्टिसिपेंट का स्टिमुलस कैसा है और कैसा फीडबैक है, कंटिन्यूस डायलॉग और एंगेजमेंट इंश्योर हो जाए। और उसके बाद देखोगे कि भाई ट्रेनिंग होने के बाद यू टेक ए फीडबैक ऑफ द पार्टिसिपेंट्स कि वेदर इट वाज रियली इफेक्टिव और नॉट, क्या एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट हो सकता है। तो कंटिन्यूस बेसिस पे इन एड्स का, टूल्स का इवेल्युएशन भी करना चाहिए। नहीं कि भाई आपने बना दिया और वो शाश्वत सत्य है। फाइनली जो टेस्ट ऑफ पुडिंग लाइज इन ईटिंग। तो जब तक आपके पार्टिसिपेंट्स आपको फीडबैक नहीं दें, आप उसको कंटिन्यूस बेसिस पे मॉडिफाई करते जाइए, अपग्रेड करते जाइए। अब इसमें अब थोड़ा सा फ्यूचर डायरेक्शंस की अपन लोग बात कर लेते हैं
जो अब कंक्लूजन के अंदर, कि धीरे धीरे आप देखोगे कि टेक्नोलॉजी इतना ज्यादा प्रोग्रेस कर रही है और न्यू टेक्नोलॉजी जो आ रही है, दैट इज वर्चुअल रियलिटी है, ऑगमेंटेड रियलिटी है, होलोग्राफिक्स हैं, सिमुलेटर्स, तरह तरह के सिमुलेटर्स हैं जिसमें यू कैन एम्बेड सो मेनी सेंसर्स यू नो, एंड आपको एक रियल लाइफ सिचुएशन का आभास होता है। तो ये नई टेक्नोलॉजीज हैं जो आप पर्टिकुलरली अभी वी आर ऑपरेटिंग इन 4G डोमेन। 5G डोमेन पे जब हम लोग जाएंगे, और अभी इंडिया में भी काफी काम हो रहा है 5G के ऊपर, तो आप देखोगे कि अवेलेबिलिटी ऑफ सच रियल लाइफ कनेक्टिविटी, प्रैक्टिकली आपको ये लगेगा कि आपका पार्टिसिपेंट और आप में एक तरह से रियल लाइफ कम्युनिकेशन हो रहा है, और जो हाई बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट होगी वो सारी की सारी आपकी अवेलेबल हो जाएगी। इनफैक्ट 5G में आप देखोगे कि 2-2.5 घंटे की पूरी फिल्म आप फ्यू सेकंड्स में डाउनलोड कर सकते हो। तो दैट इज नाउ गोइंग टू बी द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी। और उसके लिए हम लोगों को ये जो नई इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं, इनके ऊपर एटलीस्ट यदि मास्टरी नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट वी मस्ट अंडरस्टैंड कि हाउ दे कैन बी डिप्लॉयड एंड यूज्ड इन आवर ट्रेनिंग एंड डिलीवरीज। तो इन सब के साथ ही बाकी का नाउ हम ओपन कोई फर्दर डिस्कशन करना चाहें, कुछ और चीज फर्दर यू वांट टू ब्रिंग ऑन टेबल, आई विल बी टू हैप्पी। यस सर। यस मीना मैम, कुछ फर्दर आप ऐड करना चाहेंगे और क्या होना चाहिए? आप बताइए, कुछ चीज मिसिंग है और कोई कमेंट आप करना चाहेंगी? नहीं सर, ऐसा मिसिंग तो कुछ नहीं है, बट यस अभी रिसेंट जो सिनेरियो है ना सर, लोगों का मोटिवेशन बड़ा डाउन है। सो वी टेक डिस्ट्रीब्यूटर सेशंस ऑन अ डेली बेसिस। तो अभी फॉर 1 hour, तो व्हाट वी डू नाउअडेज कि अभी जब हम सेशन स्टार्ट करते हैं तो वी स्टार्ट विद सम मोटिवेशन वीडियो। बहुत बढ़िया मैडम, आपने इतनी अच्छी बात कही कि भाई मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। हाँ, तो ऐसे डिफिकल्ट सिचुएशंस में वी एज फैसिलिटेटर्स, हम लोगों का बहुत बड़ा जिम्मेवारी बन जाता है कि स्टाफ के मोरल को कैसे ऊंचा किया जाए। बिकॉज खास करके जो पीपल हु आर वर्किंग इन प्राइवेट सेक्टर यू नो, तो उनके तो एक सोड अटकी ही रहती है कि भैया कल मेरी नौकरी रहेगी नहीं रहेगी। तो रीअश्योरिंग वर्ड्स हम लोगों की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से, ये डिफिकल्ट टाइम है, ये सी दिस डिफिकल्ट टाइम नेवर स्टे फॉर लॉन्गर पीरियड। ये बहुत थोड़े देर के लिए आते हैं, उस टाइम तक हमें अपना मनोबल एंड वी हैव टू कीप आवर इंटीग्रिटी इंटैक्ट, फिजिकली, मेंटली और हर तरह से अपने आप को बचा के रखना है। तो ये पार हो जाएगा, क्योंकि हर डार्कनेस के बाद एक सनसेट तो होता ही है। सर सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है कि वी आर ब्लेस्ड टू विद द कंपनी हु इज टेकिंग केयर ऑफ एवरी एम्प्लॉय। इवन लास्ट ईयर व्हेन लॉकडाउन स्टार्टेड, those were not in the performance list of the even of the frontline salespersons. Those rating was 1. Even company keep them intact with the management decision is ki we are not going to throw out from the system. We keep them for next 6 months so that अगर एक को निकाला तो इसका मतलब 4 लोग और फैमिली के एक को खाने की दिक्कत हो जाएगी, and we are okay on that. And even for that every employee has given sacrifice. We won't want any everyone say ki increment we don't want for next 6 months, but at least keep these employees in the company so that they can survive. I think बहुत हाई लेवल ऑफ एम्पैथी कंपनी में है, और इसके बहुत एडवांटेज आई टेल यू कि यदि आपने एक बंदे को भी निकाल देते तो रूमर ये जाती कि कंपनी इज गोइंग ऑन ए मैसिव ले ऑफ। और ये पूरा एक जैसे अभी भी देखो ना, कोरोना का डर, आधे जो प्रॉब्लम तो डर के मारे हो रहा है, ऑक्सीजन शॉर्टेज होगी तो हर आदमी रस कर रहा है कि हॉस्पिटल में एडमिशन हो जाए, जबकि मेजॉरिटी ऑफ द केसेस कैन बी वेरी वेल हैंडल्ड एट इन होम क्वारंटाइन इटसेल्फ। बट वो जो एक फियर साइकोसिस बन जाता है, तो सेम ऐसी सिचुएशन में वन हैज टू थिंक वेरी वेरी पॉजिटिवली
और ये देखना है कि भाई कंपनी के मोरल बना रहे, और मोरल, कंपनी का मोरल कब बना रहेगा, जब उसके एम्प्लॉइज का मोरल बना रहेगा। तो कीपिंग इंटैक्ट द मोरल, एनर्जी, सोलिडेरिटी ऑफ द एम्प्लॉइज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये सारा रोल हम लोग बहुत अच्छे से प्ले कर सकते हैं एज ए ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट डिवीजन। और ये बिल्कुल छोटे right. छोटे नगेट, छोटे छोटे कोटेशन, छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे गेस्चर्स, क्योंकि इनसे भी आदमी एक बहुत देर के बाद ये नगेट्स और ये बहुत इफेक्टिव नहीं होती, बट इनके साथ साथ आपका एक्शन रिफ्लेक्ट होता है, अलाइन होता है आपके उस प्रेजेंटेशन से। तो Correct, बहुत sir. पॉजिटिव रेनफोर्समेंट मिलता है कि मैनेजमेंट कह कुछ रहा है और ग्राउंड लेवल पे कुछ कर रहा है, तो फिर लोगों को विश्वास उठ जाता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। लेकिन सर HDFC Life, आई एम वर्किंग विद HDFC Life, बट दे आर थिंकिंग सो मच ऑफ देयर एम्प्लॉइज एंड आई एम हैप्पी, आई एम द पार्ट ऑफ दैट कंपनी। और इवन क्योंकि मैडम, मैं ये बहुत ग्रेट कंपनी है, क्योंकि हमें भी पता है, जब शुरू में BHL ज्वाइन किया था तो लोग HDFC के शेयर ले लो यार, और कई लोगों ने लिए, तो वो उस टाइम से कुछ कंपनी कंसिस्टेंटली बिहेव करती हैं। HDFC हो गया, हिंदुस्तान लीवर हो गया, जिन्होंने उस टाइम लिया आज वो पता नहीं कहाँ पहुंच गए। तो जो जिन कंपनीज के अंदर एक बेसिक DNA उनका सही होता है ना, जो एम्प्लॉय सेंट्रिक और वेरी प्रोफेशनल इन नेचर, बट एट द सेम टाइम टेकिंग केयर ऑफ द एम्प्लॉयज, तो ये लॉन्ग टाइम तक चलती हैं एंड दे कैन सर्वाइव एनी डिफिकल्ट सिचुएशन। फॉर दैट मैटर इवन जैसे नेस्ले जैसी कंपनियां है, कितना डिफिकल्ट फेज से ये लोग गुजरे, बट बड़े आसानी से ये लोग उसको पार कर गए। तो डिफिकल्ट टाइम्स में आपको एक मैच्योरिटी दिखाना और पूरे स्टेक होल्डर्स को एक साथ रखना, तो हम लोगों का जिम्मेवारी नॉट ओनली टू आवर्स एम्प्लॉयज, बट बाकी के स्टेक होल्डर्स को भी कैसे फुल्ली एंगेज रखें हमारे साथ। सो दैट इज, और इन सब में ये जितने भी टूल्स हैं दे आर वेरी वेरी पावरफुल एंड बड़ा केयरफुल तरीके से यूज करने की जरूरत है। लेकिन ये नहीं कि भाई हर जगह हर टूल फिट होगा, सिचुएशन के हिसाब से टूल्स का इस्तेमाल करना है। तो इसीलिए सर थोड़ा सा मोटिवेशन लेवल अप करने के लिए आई स्टार्ट विद द वीडियोस, इवन नॉट इन इंग्लिश, इन हिंदी, बिकॉज मोस्ट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर्स फील्स हैप्पी अगर मैं हिंदी में चलाती हूँ कोई भी वीडियो। देखिए ये तो लैंग्वेज फ्रेंडली दे मीडिया है, दे फील लैंग्वेज फ्रेंडली। बिल्कुल भाई, आप देखो कि तमिल पॉपुलेशन को करना है, तो देन उनकी मदर टंग में यदि पढ़ाया जाए, उनके इंफॉर्मेशन शेयर किया जाए, दे विल फील हैप्पी। तो लैंग्वेज इज जस्ट ए कम्युनिकेशन मीडिया। Apart from that, sir, I started one series on a Saturdays for them, other than topics, मतलब जिसमें उनको लगता है कि एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट चाहिए या उनको पता नहीं है वो कैसे काम करता है। फॉर एग्जांपल लाइक इक्विटी मार्केट, डेट मार्केट कैसे काम करता है, डेरिवेटिव्स क्या होता है, हाउ टू कैलकुलेट IRR। सो कुछ ऐसे उन्होंने मुझे बोला कि ये चीजों पे आपका अगर फोकस आप इंक्रीज कर दो मैडम, तो ऐसा कुछ शुरू करो जिससे कि हमें और भी नॉलेज हो। हमारा जो दिमाग इधर उधर जाता है, तो उससे क्या है कि हम नॉलेज में लगाएंगे तो कुछ नया सीखेंगे, तो वी पर्सनली एक्सप्लोर दैट। सो आई स्टार्टेड ऑन अ नॉलेज सीरीज, Saturdays knowledge series. So everyone so liked. I did 2 sessions till now, but everyone so much liked, says we are learning something new. So हमारा जो माइंड है वो नई चीजों की तरफ जाएगा, तो हम इस तरफ से थोड़ा सा और फिर होता क्या ना कि आपका मोरल भी बूस्ट होता है। जैसे आपने क्लास कर लिया तो यू फील मोर कॉन्फिडेंट कि चलो यार मेरा डिप्लोमा भी बन जाएगा, मैंने कुछ आज नया सीखा। तो आप एंगेज पॉजिटिवली रहते हो इन डिफिकल्ट सिचुएशंस, तो आपकी पॉजिटिविटी बनी रहती है एंड यू आर प्रिपेयर्ड फॉर ए नेक्स्ट डिफिकल्ट सिचुएशन इफ इट अराइजेस। करेक्ट सर, इसलिए कीपिंग कोर इंटैक्ट इज वेरी वेरी एंड वो केवल पॉजिटिव थॉट से, पॉजिटिव लर्निंग से, पॉजिटिव स्किल बिल्डिंग से ही हो सकता है। And with this, I think KK sir की इजाजत हो तो we can say goodbye. Yes sir. हैं? Thank you sir. चलिए, बहुत बढ़िया, और बहुत अच्छे से अपने आप को बिल्कुल फिट रखिए, हेल्दी रहिए, अच्छी डाइट खाइए, फ्रूट्स खाइए, लॉट ऑफ फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, दिस इज द नीड ऑफ द आवर, कि कंटिन्यूस बेसिस पे बहुत हैवी स्टफ ना लेके, ताकि बॉडी भी लाइट रहे और सोल भी लाइट रहे and fully energy level भी चार्ज रहे। आज sir, a message for all participants from Verma sir. वो फीडबैक के बारे में याद करके आप लोग प्लीज जो वर्ड फाइल वाला था वो फिल करके भेज दीजिएगा वर्मा सर को। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, डन डन डन, वंडरफुल, वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा जी। सुदीप जी, थैंक यू सर, जितेंद्र जी, मीना मैम, रुपेश सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू बहुत सर। बढ़िया, आप लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है ऑन ए रेगुलर बेसिस।
थैंक यू सर। चलिए So same here, sir. चलिए ठीक, थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir. ओके वर्मा सर, बाय बाय। हेलो वर्मा सर, बाय बाय।